Okay, dear students, we are going to start a new chapter, chapter number 22 from the 11th standard CBSE book. The name of a chapter is a chemical coordination and integration. Before starting you the chapter in detail, in a brief account, I would like to tell you what does it mean, chemical coordination and integration. Yes, before this unit, we have studied chapter number 11. The name was a control coordination. Yes, coordination definition. What did we say the definition of coordination? When more than two organ, you can say two organ or more than two organ, when work together to do the single function, it was called as coordination. Say for example, I told you that when we are running very fastly after completion of marathon or we do the exercise, after doing exercise, what we need? Our muscle need rest plus they need oxygen. And to gain the oxygen, lungs are playing role, medulla oblongata is playing role, brain is playing role, and after that we are getting full oxygen and our muscles are getting rest. So more than two organs are doing same function, no? That's called as a coordination. That's called as a coordination. So in this chapter, the title of this chapter is a chemical coordination and integration. Now what is chemical according to this chapter? Our chemical is nothing but the hormones. What is that? Hormones. Now I would like to tell you that two different definition of hormone. One is fully scientific based, which is given in our NCERT text, and second one is very common, which can be easily understandable by anyone. You know, किंग कोबरा स्नेक होते हैं. किंग कोबरा में जैसे मेल स्नेक होते हैं और फीमेल स्नेक भी होते हैं. किंग कोबरा स्नेक में रिप्रोडक्शन की एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है. जो मेल कोबराज होते हैं वो स्किन के थ्रू क्राउलिंग मूवमेंट करते हैं और उनकी स्किन के थ्रू हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिस हार्मोन को जूलॉजिकल लैंग्वेज में कहा जाता है फेरोमोन. क्या? फेरोमोन. प्लांट में हम हार्मोन को क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स. आपने अभी वो देखा नहीं चैप्टर. In case of plant, we called it as a phytohormone. In case of human being, we use a word called hormone. And in case of a animal world, this is called as a pheromone. तो स्नेक किंग कोबरा जब मेटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं तो स्किन के थ्रू फेरोमोन हार्मोन जमीन में छोड़ते जाते हैं और उन हार्मोन की कैपेसिटी इतनी है कि 800 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक, मतलब समझ लो 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक अगर किंग कोबरा स्पीसीज की फीमेल होगी तो वो हार्मोन की स्मेल से अट्रैक्ट होगी और मेल की तरफ आएगी. दूसरी कोई स्पीसीज नहीं आएगी, वही स्पीसीज आएगी. वो क्यों? जस्ट बिकॉज देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स. बट इन केस ऑफ एनिमल वर्ल्ड वी यूज टू वर्ड कॉल्ड pheromones, and in case of human being we use a word called hormone. So what is chemical coordination? If you replace the word called chemical by hormone, so you can say hormonal coordination. मतलब जब दो ऑर्गन या तो दो से ज़्यादा ऑर्गन सेम फंक्शन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. मतलब दो ऑर्गन क्या करेंगे? अभी हार्मोन के थ्रू दो ऑर्गन साथ में वर्क करेंगे और एक पॉजिटिव वर्क करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज अ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड integration. This is a title of our chapter. I would like to tell you guys, प्लांट के अंदर ऑलमोस्ट 7 से 8 हार्मोन होते हैं. जो रिपीटर कैंडिडेट उन लोगों को पता होगा. ऑक्सिन हार्मोन, इथिलीन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन एंड ABS स्टैंड फॉर एब्सिसिक एसिड. और 3 हार्मोन होते हैं. वर्नेलिन हार्मोन होता है, फ्लावर प्रोडक्शन में काम में आता है. एक हार्मोन होता है फ्लोरिजेन, वो भी फ्लावर प्रोडक्शन में आता है. और 2-3 हार्मोन होते हैं प्लांट में. लेकिन ह्यूमन बींग में अगर देखा जाए तो 28 से 32 हार्मोन ऑलमोस्ट होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रोड्यूस करती है और पिट्यूटरी के अदर ग्लैंड्स भी कंट्रोल करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ग्लैंड्स बता देता हूँ. ग्लैंड्स क्या होते हैं? यस, व्हाट डज इट मीन बाय ग्लैंड्स? ग्लैंड्स इज नथिंग बट द स्पेसिफिक ऑर्गन. ग्लैंड्स इज नथिंग बट a specific organ which is responsible for production of hormone, and this hormone go to the effector organ. Say for example, I'll give you one clue. In our blood sugar level is increased. In our blood sugar level is increased. This is suppose our artery in which blood is present,
and our blood sugar is around 180 mg per dl. When I was teaching you the pancreatic hormone in digestive chapter, I told you blood sugar level of a human being is about 120 to 160 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन, इसके बीच में होती है हमारी शुगर. मान लो अगर मैंने अभी 2 बजे खाना खाया और अगर मैं 4 बजे ब्लड शुगर लेवल मेरी चेक करता हूँ तो वो शुगर कितनी होनी चाहिए? 160 और 120 के बीच में. और अगर वो शुगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपर ग्लाइसेमिया. क्या कहेंगे हम? हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसे मतलब ग्लूकोज, मिया मतलब ब्लड. तो ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा, किससे ज़्यादा? 160 से ज़्यादा. समझ रहे हो आप सब लोग? यस. तो ब्लड शुगर लेवल अगर 160 से ज़्यादा है तो इसे हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया. तो अभी शुगर ब्लड में ज़्यादा है ना, तो हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेशन करना है. लेकिन कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू करेंगे हम? केमिकल के थ्रू. और हमारे केमिकल कौन से हैं इस चैप्टर में? हार्मोन्स. और हार्मोन किससे प्रोड्यूस होते हैं? ग्लैंड से. सो दिस इज अवर ग्लैंड. आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस ग्लैंड. यू कैन से pancreas. Yes. So pancreas is our gland at this position. So pancreas produces a 3 type of hormone: glucagon hormone, insulin hormone, somatostatin hormone. लेकिन हमें पता है पेंक्रिया में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहन सेल्स नाम के सेल्स होते हैं, जिसमें 3 प्रकार के सेल्स होते हैं: अल्फा सेल और बीटा सेल और डेल्टा सेल. तो इस वक्त हमें कौन से काम में आएंगे सेल? बीटा. सो बीटा सेल्स आर दी cells from the isolates of Langerhans, and they are produced from the pancreas as a gland, and they produce which hormone? They produce hormone called insulin, and this hormone goes inside the blood and they downs the blood sugar from 180 in between 120 to 160 milligram per dilution. तो ब्लड शुगर लेवल 120 और 160 के बैलेंस में आ गई. यस. अभी ये प्रोसेस करने के लिए कितने ऑर्गनों ने काम किया? सबसे पहले ब्लड शुगर बढ़ी तो ब्रेन में पता चला. इनसाइड ब्रेन एट द सेंटर देर इज वन ऑर्गन, देर इज वन ग्लैंड. आई मस्ट से ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड. और पिट्यूटरी ग्लैंड किसे मैसेज करते हैं? पेंक्रियास को. तो पहला हुआ ब्रेन, दूसरा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा हुआ पेंक्रिया. और पेंक्रिया में भी बीटा सेल स्पेसिफिक. तो ये 4 ऑर्गन हुए और ये चारों के चारों ऑर्गन एक ही काम करने में इन्वॉल्व है. कौन सा काम? डिक्रीज ब्लड शुगर फ्रॉम 180 टू बिटवीन 120 टू 160. दैट्स ऑल. सो कोऑर्डिनेशन करना मतलब क्या? व्हेन मोर देन 2, you can say 2 or more than 2 organ involved in same process, this is called coordination. और हम इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन बैलेंस किसके थ्रू कर रहे हैं? केमिकल से. और वो केमिकल को हम बोलते हैं हार्मोन. तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं हार्मोन की क्या होता है. यस. हार्मोन it can be defined as it is nothing but the chemical messenger. Listen here. Hormone is nothing but the chemical messenger which is produced from gland and their activity takes place on effector organ. Effector organ मतलब जिस organ को हार्मोन की नीड है उस organ को हम बोलेंगे effector organ. और हार्मोन जहाँ से प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलेंगे? glands. So hormones are nothing but chemical messenger which are produced from glands, but their activity always takes place in a effector organ. अभी हमारा effector organ ब्लड शुगर लेवल में कौन सा था? ब्लड. क्योंकि हम ब्लड में शुगर कम कर रहे थे. मान लो फीमेल को अगर MC पीरियड बैलेंस करना है तो MC पीरियड बैलेंस करने के लिए हार्मोन जो लगेगा वो होगा एस्ट्रोजन. यस. वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में से, ओवरी में से प्रोड्यूस होगा. और फीमेल को अगर प्रेगनेंसी मेंटेन करनी है यूटेरस को तो हार्मोन लगेगा प्रोजेस्टेरॉन. अगर ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ हार्मोन बैलेंस करना है, मतलब हमारी हाइट बैलेंस करना है, तो हमें हार्मोन लगेगा ग्रोथ हार्मोन. तो सभी हार्मोन अलग अलग ग्लैंड में से प्रोड्यूस होते हैं और सभी हार्मोन के लिए स्पेसिफिक इफेक्टर ऑर्गन होते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल? डू टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल? Do you understood the definition of hormone? Hormone is a one chemical messenger which is produced from gland and their activity takes place on effector organ. अभी हम और एडवांस डेफिनेशन देखते हैं साइंटिफिक. हाँ, हार्मोन्स आर नथिंग बट, लिसन, हार्मोन्स आर नथिंग बट नॉन न्यूट्रेंट केमिकल. हार्मोन्स आर नथिंग बट non-nutrient chemical which is produced in very less amount, means which is produced in very trace amount.
TRACE, ट्रेस मतलब सबसे कम। हार्मोन एक नॉन न्यूट्रेंट केमिकल है जो हमारी बॉडी में सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस स्पेसिफिक ऑर्गन से होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लैंड्स, और उसकी एक्टिविटी स्पेसिफिक ऑर्गन पे होती है जिसे हम बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन। यस, हार्मोन हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो भी हमें कोई एक स्पेसिफिक प्रकार की बीमारी होगी, एंड इफ हार्मोन प्रोड्यूस इन लो कॉन्सेंट्रेशन देन स्टिल वी विल सफर फ्रॉम पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग? से फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ वन चाइल्ड whose age is a 7 year, and in his body growth hormone produced in very less concentration, so he will suffer from dwarfism. His height will never increase, he will be small in size. सर्कस में जोकर होते हैं ना, वो जोकर ड्वार्फाइज्ड होते हैं, ड्वार्फिज्म होते हैं, उनकी हाइट है ना कभी बढ़ती नहीं, समझ रहे हो? और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की एज 14, 15 साल, 18 साल तक चली गई और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन होना बंद हो गया, तो उसे बीमारी होगी सिमंड्स डिसीज। मतलब 18 साल तक जितनी हाइट बढ़ गई, अब नहीं बढ़ेगी। मान लो उसकी हाइट 5 हो गई है, लेकिन अब 5 के बाद नहीं बढ़ेगी, बिकॉज हार्मोन प्रोडक्शन होना बंद हो गया। किसी में सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होते, या तो उनको क्लेनफेल्टर नाम की बीमारी होगी जिसमें मेल को 2 X क्रोमोसोम होते हैं और एक Y, या तो फीमेल अगर होते तो फीमेल में टर्नर सिंड्रोम होता है, तो ऐसे बीमारियां होती। सो हार्मोन, हाउ मच इट शुड बी प्रोड्यूस? हार्मोन शुड बी प्रोड्यूस इन दैट क्वांटिटी एज इट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, नाइदर टू हाई नाइदर टू लेस, इट शुड बी इन ऑप्टिमम। व्हाट डज इट मीन ऑप्टिमम? जितना जरूरी है उतना ही। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस? Anyone have any doubt? So this is what about the hormone. Now I would like to tell you how many type of a glands are there. So for your kind information, there are 2 type of a gland. One is exocrine gland and second one is endocrine gland. आता तुम्ही जे रिपीटर आहे, जे सिनियर आहे, तुम्हाला बेसिक्स माहिती असेल. फॉर युअर काइंड दिस माइट बी दी ABCD, पण जे 11वीला आहे त्यांच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. सो दोज हु आर बिगेनियर, जिनको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बीच में प्रॉपर डिफरेंस नहीं पता है, वो प्रॉपरली देख लो. आज अगर नहीं समझे तो लाइफ में कभी नहीं समझेगा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है. यस, आई विल शो यू. लिसन गाइस, दिस इज अ ग्लैंड एंड दिस इज organ. This is a gland and this is organ. What is meant by exocrine gland? Exocrine gland are also called ductful glands. Exocrine glands are also called ductful gland. और endocrine को क्या बोलते हैं? Opposite. Ductless gland. Means exocrine gland have a specific pipe. Endocrine gland don't have any specific pipe. Are you getting what does it mean by specific pipe? So see, listen here, listen. This is the organ which need a hormone, and this is the organ which produces hormone called as a gland. So this gland is producing hormone and transferring that hormone via pipe. ये gland ने एक हार्मोन प्रोड्यूस किया, वो हार्मोन मैं ब्लू कलर में इंडिकेट कर रहा हूँ आप लोगों को. तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होके कहाँ जा रहा है? इफेक्टर ऑर्गन तक जा रहा है. और इस हार्मोन को कैरी करने के लिए स्पेसिफिक पाइप है जिसका और कोई रोल नहीं है बॉडी में. रोल क्या है? बस इस ग्लैंड में से हार्मोन कैरी करके ऑर्गन तक पहुंचाना. तो ये पाइप उसी के लिए बना है ना. यस, सो दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड. Gland produces hormone. If that hormone is carried by a particular pipe to that organ, then such kind of a gland is called as a exocrine gland. हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? एक्सोक्राइन. लिवर. याद रखो, लिवर इज दी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. इतनी बेसिक बातें नीट में कभी नहीं पूछी जाएगी. यस, बट कीप इट इन माइंड. इज इट क्लियर? लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज अ liver. Largest exocrine gland in our body is also liver. मतलब अगर हम ऐसा देखें कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो वो है लिवर, डाइजेस्टिव ग्लैंड है. और हमें ये देखें कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है जिसको पाइप है, तो वो भी है लिवर. लिवर में हमने पाइप देखे थे डाइजेस्टिव चैप्टर में. देखो, हेपेटिक डक्ट,
विच कैरी हार्मोन, गोल ब्लाडर से हार्मोन आता था, लिवर से हार्मोन आता था, पेंक्रियास से हार्मोन आता था, और तीनों ग्लैंड, तीनों डक्ट को हमने नाम दिया था कॉमन डक्ट, हिपेटो पेंक्रेटिक डक्ट, कॉमन डक्ट। इज इट क्लियर? तो अभी एंडोक्राइन हार्मोन का मतलब क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब ये ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन इस ग्लैंड को हार्मोन पहुंचाने के लिए कोई पाइप नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? दिस इज अ ग्लैंड, बट दिस ग्लैंड डोंट हैव एनी स्पेसिफिक पाइप टू कैरी द हार्मोन फ्रॉम ग्लैंड टू द ऑर्गन। लेकिन अगर पाइप नहीं तो क्या हुआ? सभी ऑर्गन को हमारी बॉडी में ब्लड तो मिल ही रहा है, और ब्लड मिलने के लिए क्या होगा? स्पेसिफिक आर्टरी। तो देखो आर्टरी तो जा रही है, तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक पाइप है। दिस इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक पाइप फॉर व्हाट? स्पेसिफिक डक्ट फॉर व्हाट? हार्मोन कैरिंग, बट दिस इज कॉल्ड एज अ आर्टरी। और आर्टरी कभी भी कोई स्पेसिफिक नहीं होती है। यस, तो समझ लो ये ग्लैंड की तरफ ये जब आर्टरी आती है तो ये ग्लैंड क्या करते हैं? अपने हार्मोन डायरेक्टली पोर कर देते हैं। किस में पोर कर देते हैं? पोर इनटू आर्टरी। और ये आर्टरी ऑब्वियसली यहाँ से हार्मोन को कैरी करके ऑर्गन तक पहुँचा जाएगी। तो ग्लैंड में से हार्मोन अगर पाइप के थ्रू ऑर्गन तक पहुँचते हैं तो वो ग्लैंड को हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, और हार्मोन को क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन हार्मोन। और इन केस अगर डक्ट नहीं है तो ग्लैंड के थ्रू ऑर्गन, डक्टलेस ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स आर कॉल्ड एज अ एंडोक्राइन। हमारी बॉडी में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, जो नेक में है, लैरिंग्स के पास में। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज अ come on guys, thyroid gland located in neck region. Weight is about 25 to 30 gram. Weight is about 25 to 30 gram and size is about 3 to 5 centimeter in length. 3 to 5 centimeter in length. तो क्लियर हो गया अभी? ग्लैंड एक ऑर्गन जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अगर डक्ट के थ्रू हार्मोन कैरी होता है ऑर्गन तक तो एक्सोक्राइन, और विदाउट डक्ट अगर डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन जाता है तो वो होते हैं एंडोक्राइन डक्ट। हम हमारे चैप्टर में कोई भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड के सीबीएसई में कोई भी एक्सोक्राइन ग्लैंड को डिस्कस नहीं किया गया है। हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर देख ली हुई है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में। यस, तो हम इस चैप्टर में सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड ही डिस्कस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इज इट क्लियर? Okay, listen now, we are going to see a very important gland of our body. I'll tell you, the name of gland is called pituitary gland. I'll tell you, if this gland is not present in our body, no, we would have been died, fully died. How we would have been died? Because pituitary gland हमारी बॉडी में almost काउंटिंग में 10 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और अनकाउंटिंग करो तो नियर अबाउट 18 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और हमारी बॉडी में बाकी जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सभी के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी। बॉडी में सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड, लेकिन थायराइड ग्लैंड कब हार्मोन प्रोड्यूस करें, कितना हार्मोन प्रोड्यूस करें, कौन से मेथड से हार्मोन प्रोड्यूस करें, ये सब कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी। हमारी किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, जैसे हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो वो ग्लैंड भी हार्मोन कब प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, ये भी कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी। तो हमारी बॉडी में जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सभी के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आप देखोगे ना तो आप बिलीव नहीं करोगे, पी कैसा होता है? गार्डन पी। गार्डन पी जितनी छोटी सी ग्लैंड होती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आई हैव सॉ दिस इन अ यू कैन से डिस्कवरी चैनल। देर वॉज अ चाइल्ड ऑफ अ 3 year. From the bed he fall down and he was crying. Then his mother basically pushed the forehead like that. हम करते हैं ना ऐसा ताकि सूजन नहीं आ जाए, स्वेलिंग नहीं आ जाए, तो तब नॉर्मल हो गया। Yes, child stop crying. Then problem is solved. After around 12 years, when his height was not increasing, no, then parents were in the, you can say, problem that they concerned with a doctor. उनको डॉक्टर ने पूछा
कि क्या ऐसे बचपन में कोई चोट लगी थी, तो इन्होंने बोल दिया कि नहीं कोई चोट लगी नहीं थी। अगर चोट लगती, हॉस्पिटल में जाते, इशू क्रिएट होता, तो उनको वो चीज़ याद रहती ना, लेकिन छोटे छोटे से गिरना ये तो नॉर्मल हो गया ना। देन दे रिप्लाइड यस, एक बार ऐसा हो गया था कि ये बेड से नीचे गिर पड़ा था और थोड़ा रोया, फिर बाद में शांत हो गया, तो हमने सीरियस लिया ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप है ना सीटी स्कैन करो। जब उन्होंने सीटी स्कैन किया ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का वो हिस्सा जहाँ से ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है ना, वो है ना दब गया था तब। तो जब उसकी एज बढ़ी ना, तब वो हार्मोन प्रोड्यूस होना ही बंद हो गया था, और इसके लिए उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म नाम की बीमारी हो गई थी। तो उसकी हाइट बढ़ ही नहीं रही थी 3.5 फीट से। सो ये ऑर्गन, ये ग्लैंड सिर्फ एक ग्रीन पी जितना छोटा है, बट दिस कंट्रोल मैक्सिमम हार्मोन इन आवर बॉडी। इज इट क्लियर गाइस? लेट्स स्टार्ट विथ पिट्यूटरी ग्लैंड. So this is a diagram of pituitary gland. First of all, I would like to tell you, in our NCERT syllabus, pituitary gland is not explained in that way, which I am going to explain you. So if you are focusing and if your teachers are saying that we will not ask any question from outside, if you truly believe from bottom of heart, then you can miss this lecture. But if you understood this lecture, then this is great thing for you. Let's begin, guys. Pituitary gland is also known as a master gland of our body. Why it is called master gland? Because it control all other endocrine gland in our body. In our body there are so many, listen here, in our body there are so many other endocrine glands, and all other endocrine glands are controlled by pituitary, and therefore pituitary is called master gland of our body. Pituitary gland is located in the brain. Pituitary gland is located in the brain, just below the hypothalamus, and it is connected to hypothalamus via optic chiasma. सबसे पहले सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ. पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में कनेक्टेड है, ब्रेन में है, और वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है. और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में दो ऑर्गन होते हैं. एक होता है ऑप्टिक चाइज्मा और दूसरा ऑर्गन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का खुद का, जैसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलर स्टेम. ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम दी अबव, अभी मैं 3D नहीं बता सकता, आप समझ लो. ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी है और पिट्यूटरी ग्लैंड के एग्जैक्टली अबव जो बोन है वो है स्फिनोइड बोन. तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अबव विद हेल्प ऑफ अ स्फिनोइड बोन. पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम द अबव इज प्रोटेक्टेड बाय स्फिनोइड बोन. Pituitary gland is divided into two parts. Which two part? Front part is called as a adenohypophysis and back portion is called as a neurohypophysis. I would like to tell you, adenohypophysis is anterior lobe, which is 75% compared to the neurohypophysis, which is only 25%, and neurohypophysis is called posterior lobe. Pituitary gland is divided into two parts. Front part adenohypophysis, ये आपको कब देखेगा? जब आप CT स्कैन या MRI करोगे तो ही. सोनोग्राफी से नहीं पता चलता. सोनोग्राफी ऑलमोस्ट एब्डोमिनल, किडनी, लिवर, इन पार्ट्स की सोनोग्राफी होती है. लेकिन ब्रेन के पार्ट्स को अगर आपको देखना है, इंटरनल पार्ट्स को, सभी लोब्स को, जैसे हमने देखा था फ्रंट लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब. सो इफ यू वांटेड टू सी देम, यू हैव टू यूज अ CT स्कैन और व्हाट? MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन. ये टेक्निक से ही आपको ये सब पार्ट्स दिखेंगे. तो फ्रंट पार्ट जो होता है वो होता है एडिनोहाइपोफिसिस. एंटीरियर लोब इसे हम कहते हैं. फ्रंट पार्ट 75% होता है. Why? Because anterior lobe shows slightly swelling, and this swelling is called Redkes pouch. जो CET के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है Redkes pouch ऑर्गन. क्या होता है Redkes pouch? Front part of a pituitary gland shows 75% and it shows slightly swelling, and this swallow portion is called as a Redkes pouch. Front part is divided into three parts, such as a pars tuberalis, pars distalis, and pars intermedia. And neurohypophysis is divided into three parts: median eminence, infundibular stem, and pars nervosa.
Is it clear everyone? Is it clear? I have not taught you these parts yet. ये पार्ट्स पढ़ाना बाकी अभी, लेकिन इतना समझ रहे हैं आपको. पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, एडिनो हाइपोफिसिस मतलब सामने वाला पार्ट, एंटीरियर लोब जिसकी स्वेलिंग को हमने नाम दिया है रेथकेस पाउच, और बैक पोर्शन को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस, और वो सिर्फ 25% ही है, जिसमें भी 3 पार्ट है और फ्रंट पार्ट में भी 3 पार्ट है. ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. Adenohypophysis is an anterior portion of a pituitary gland, and it is divided into 3 subparts. These parts are pars tuberalis, pars distalis, and pars intermedia. Let's see first one, pars tuberalis. Pars tuberalis is a tubular region. Pars tuberalis, it is a tubular region. Pars tuberalis is a tubular region located front of a infundibulum, so it is called collar around infundibulum. When we wanted to determine the height of a 2-person, we generally do not determine up to the head, we determine up to collar. Yes, same way front of a tuberalis there is a infundibulum stem, so pars tuberalis is a tubular region located front of a infundibulum stem, and so it is called collar around infundibulum. Pars distalis is the largest portion of a adenohypophysis. Pars distalis is the largest portion of a adenohypophysis or front part. It is separated by reticular connective tissue. See one more time. Pars distalis is the largest portion of adenohypophysis. You can say Rethke's pouch is swelling, which is also due to the pars distalis. It is the largest portion of adenohypophysis. It is separated by reticular connective tissue, and it produces maximum hormone of adenohypophysis. It produces maximum hormone of adenohypophysis. Pars intermedia, it is a narrow and less developed. Pars intermedia, it is a narrow and less developed portion of adenohypophysis. Is it 3 part of pars? You can study. It's a 3 parts of adenohypophysis: tuberalis, distalis, intermedia. Pars tuberalis, pars distalis, pars intermedia. Moving towards a neurohypophysis means posterior lobe. Posterior lobe of a pituitary gland is called as a neurohypophysis, and it is further divided into the 3 parts. These parts are median eminence, infundibulum stem, and pars nervosa. Is it? See the first one. Median eminence. Median eminence is a small portion of a neurohypophysis. It's an anterior small portion of neurohypophysis. Infundibulum stem कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते हैं. Infundibulum stem is a part of pituitary gland. Listen here what I am saying. See the image. Infundibulum stem is a part of pituitary gland. Say for example, my palm is pituitary gland, my hand is pituitary gland, and this is hypothalamus organ. So pituitary gland is connected to hypothalamus via infundibulum stem. Pituitary gland is connected to hypothalamus via infundibulum stem. तो ऐसा समझ लो कि hypothalamus में pituitary gland को अटैच करने के लिए जो हुक होता है, उस हुक को हम क्या बोलते हैं? Infundibulum. Are you getting what I am saying? हाँ, ये देखो, pars nervosa is a main portion of a neurohypophysis which produce maximum hormone. See its description. Pars nervosa have axons in between 2 pituitary sites. What I am saying? Pars nervosa is a main portion of a neurohypophysis, and it have axons in between. It has axons in between 2 pituitary sites.
Yes, and it also shows little bit of an swelling. It also shows little bit of an swelling. This swelling is called as a Heyrig bodies. This swelling is called as a Heyrig bodies, which produce neurotransmitter hormone. And the neurotransmitter hormone, everyone knows, I think so. Yes, what is a neurotransmitter hormone? In last chapter हमने देखा था सिनेप्सिस में कौन सा हार्मोन काम में आता है? Come on, विनीत. Acetylcholine. Is it clear, guys? Pars nervosa is a main portion of a neurohypophysis. It has a axons in between two pituitary sites, and it also shows swelling. This is called as a Heyrig bodies, which produce neurotransmission hormone called as a acetylcholine. आपको इसका मतलब समझ रहा है? Axons. Axons क्या थे? ये जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में जो फाइबर होते हैं, इन फाइबर को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन्स. तो ये क्या है? एक्सॉन्स इन बिटवीन टू पिट्यूटरी साइट. पिट्यूटरी साइट्स मतलब सेल, मतलब दो पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स के बीच में क्या होते हैं? एक्सॉन्स फाइबर्स होते हैं. और ये एक्सॉन्स फाइबर्स स्वेलिंग भी बताते हैं, और इस स्वेलिंग को नाम दिया हुआ है हमने हेरिक बॉडीज, एंड दैट हेरिक बॉडीज प्रोड्यूस एसिटिलकोलिन हार्मोन एज अ पार्ट ऑफ अ neurotransmission. Yes, guys. So, dear all students, in our today's lecture, we have discussed what is meant by chemical coordination and integration. Meaning, we have discussed what is meant by glands. We have discussed how many type of a glands, such as a exocrine gland and endocrine gland. We discussed exocrine glands are transferring hormone via specific duct, so they are called ductful gland, and endocrine gland do not have a pipe to carry hormones, so they are called as a ductless gland. Largest gland in our body is liver. Largest exocrine is also liver. Largest endocrine is thyroid gland. Yes. Then we discuss pituitary gland. Pituitary gland is a master gland of our body, just because it control pituitary hormone and other glands also. And pituitary gland is divided into two parts. Front part adenohypophysis, back portion neurohypophysis. Adenohypophysis is 75%, shows swelling called Rathke's pouch, and neurohypophysis is only 25%. Adenohypophysis shows three parts, such as a pars tuberalis, pars distalis, pars intermedia. Neurohypophysis shows three parts, such as a median, you can say eminence, and infundibulum stem, and third one is a pars nervosa. So this was our lecture, first part of a chapter called as a chemical control and coordination. In second part, in our second video, we will discuss all the hormones of pituitary gland, and in our third video we will discuss all the other endocrine gland which are being controlled by the pituitary gland. Yes, everyone. And at the end of chapter we will discuss what mechanism of a hormone action. In our three videos, you will learn lots of things about hormone, but the end we must know how the hormones are coming from the gland and how they are entering inside the effector organ. Yes, everyone. Simply remember, when hormone enter into the effector organ, no, they need one carrier molecule. The name of carrier is called as a secondary messenger. Why? Because hormone is on self as a primary messenger. Okay. So all the YouTubers, my students, those who, if you like my lecture, so please subscribe to our channel and hit the bell icon for upcoming new videos. Thank you so much. Bye.